Hello, all. Welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So, today is day 14, and from today onwards, we are starting a series for Indian society and social welfare. Apart from that, also, we will be covering social justice topic from paper 2. सो हम देखेंगे सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, और कंटेम्प्रेरी टाइम्स को देखते हुए, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कैसे कैसे क्वेश्चन सोसाइटी के टॉपिक में आ सकते हैं. सो लुकिंग एट ऑल दोज topics in a question answer format and we'll try to write good and comprehensive answers for them. So let's start. So we want to talk about the today's day 14, and today we have started with the topics of Indian society and social welfare. So Indian society is a part of your paper 1 GS, and if you have any doubt regarding previous videos and any doubts regarding your preparation, kindly contact me on this. So if you look at the question which I have taken today is that every section of Indian society has been affected by COVID-19 differently. So the question is saying कि हर सेक्शन जो है इंडियन सोसाइटी का उसको कोई ना कोई इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 से, जो कि बहुत डिफरेंट है. इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हमें एनालाइज करना है. अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, एंड 15 मार्क्स के अंदर वी विल बी गेटिंग अराउंड 3 पेजेस. सो आई विल ट्राई टू टेक 15 मार्कर्स इन इंडियन सोसाइटी बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट कम है इंडियन सोसाइटी का. तो अगर मैं क्वेश्चन 15 मार्क्स का लूँगा तो आपका कंटेंट भी बिल्डअप हो जाएगा. एंड एनालाइज इज आवर क्वेश्चन टैग. नाउ इफ यू टॉक टू or start with introduction, then we have again two things, that is what kind of introductions, which is usually giving the static aspect of the question, and why, which can be contextual. So COVID-19 is more of a recent phenomena which is still ongoing, so we can write a why kind of introduction in this particular question. So if we talk about, we can simply write the what were the important highlights or characteristics of COVID-19 which we see in the society and our community which impacted us. जो भी बहुत important COVID-19 से हमने नए चीज़ें देखी हैं सोसाइटी के अंदर होते हुए, उनका हम एक ब्रीफ समरी वी कैन स्टार्ट इन द इंट्रोडक्शन. सो वी कैन सिंपली राइट दैट द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हैज़ लेड टू द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस. सी देयर आर ट्रांसफॉर्मेशंस बोथ इन द स्पेस ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डोमेन. सो वी हैव सीन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, that COVID-19 has led to various socio-economic transformations. At the same time, apart from these socio-economic transformations, we have also seen the impact can be seen in the form of social distancing, then strict lockdowns, then apart from that, closing down of businesses closing down or getting a hit due to pandemic, due to less demand in the all spheres of life. At the same time, this has affected various sections of society which can be discussed below. You can simply write and you can start your main body. So your introduction will be like that कि COVID आउटब्रेक जो हुआ हैज़ लेड टू वेरियस सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन बोथ सोशो एंड इकोनॉमिक स्पेस. एट द सेम टाइम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कैन बी फेल्ट इन the form of strict lockdowns, social distancing norms, businesses getting a hit due to lesser demand and disruptions. This is your introduction. Now coming to body, we will be taking the different section society. So अगर आपने इंडियन सोसाइटी को पढ़ा हो तो you have actually divided इंडियन सोसाइटी on different stakeholders, like women हो गया, like रूरल इंडिया हो गया, अर्बन इंडिया हो गया, then we have मेल काउंटर पार्ट हो गया, देन अगेन वी हैव मार्जिनल सेक्शंस लाइक ट्राइबल पॉपुलेशन, चिल्ड्रन पॉपुलेशन, डिसेबल्ड पॉपुलेशन. सो हम सब चीज़ों को एक साथ केटर करेंगे इसके अंदर, एंड वी विल गिविंग द हेडिंग्स बेस्ड ऑन दोज डिफरेंट सेक्शंस ओनली. तो अगर हम पहले बात करें रूरल इंडिया की या फिर रूरल लेवल पे, तो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है दैट इज़ डिफरेंट बोथ रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया. तो रूरल इंडिया के अंदर हम बात करें तो देयर इज़ लॉस ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज क्योंकि बहुत सारा जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, हमने क्वेश्चन किया था रिवर्स माइग्रेशन पे, जो हमने देखा था कि कैसे अर्बन एरियाज से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वापस रूरल एरियाज आ रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही क्या है कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ, द फर्स्ट थिंग विच वी सॉ दैट इट पुट अ प्रेशर ऑन द रूरल इंडिया. ठीक है, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा क्या है, इन्वेस्टेड है. एट द सेम टाइम अगर ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा लेबर वहाँ पर आ जाएगी तो वी हैव सीन व्हाट वी कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने बहुत हाई लेवल पे देखा है, ये सबको पता है. नाउ एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू दिस रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है, सिटी वाला लाइवलीहुड तो खत्म हो गया लेबर्स का. अब जब वो वहाँ पर रूरल इंडिया के अंदर आए हैं तो दे आर ऑल्सो फेसिंग व्हाट वी कॉल्ड एज फूड इनसिक्योरिटी, बिकॉज दे हैव नो मीन्स ऑफ सस्टेनिंग देयर लाइवलीहुड बैक होम, विच दे हैव लेफ्ट
फ्यू ईयर्स बैक, तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। तो यहीं पे क्या है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि एक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, एंड दिस रिपोर्ट वाज गिवन बाय ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या बोला कि लार्ज स्केल जो रूरल से अर्बन लोग आते हैं या लेबर्स आती हैं, दैट इज़ लार्ज स्केल labor is in the informal sector. This large scale labor is in the informal sector, and due to COVID-19 disruptions, what they are projecting is कि India will see more than or around 4 million workers which are in the informal sector in India, ठीक है, they will be likely to push into poverty. तो एक सबसे बड़ा डिसरप्शन है, ठीक है। तो मोर देन 400 मिलियन वर्कर्स हु आर इनटू दिस फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया आर लाइकली टू पुश इनटू पॉवर्टी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ऑल्सो वी हैव सीन डिफरेंट आस्पेक्ट्स। तो अर्बन एरिया के अंदर क्या है कि हमने देखा है वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, ठीक है। देन देर इज़ इंक्रीजिंग आइसोलेशन इंक्रीज हो चुका है। देन वेरियस कंपनीज आर डूइंग व्हाट पे कट्स, आपने सुना होगा इंडिगो, देन स्पाइस जेट आर ऑल एक्चुअली लेइंग ऑफ देयर स्टाफ्स, और पे कट्स भी दे रही हैं उनको। एट द सेम टाइम ये तो कुछ क्या नेगेटिव्स हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, द यूथ इज़ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, मोर डिप्रेशन एंड मोर इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म दे आर लिविंग, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई है। एट द सेम टाइम क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे अर्बन एरिया में, क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल थे या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी वर्कफोर्स थी विच इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके साथ इशू क्या हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो थे उनकी इनकम क्या है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, ठीक है। दिस इज प्राइमली बिकॉज ऑफ द डिसरप्शंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है कि डिसरप्शंस आए हैं, प्राइमरली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ MSMEs, दैट इज़ मीडियम स्मॉल माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस। तो वहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रप्शन आए एक्टिविटी में, तो स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो थे उनको भी ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी एक स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हो। हमें पता है कि हमें UPSC के सारे आंसर्स के अंदर के एक एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स से हमारे आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि अ लार्ज पॉपुलेशन इज़ बीन ट्रैप्ड अंडर दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट। तो ये हो गया। देन अब एक पॉजिटिव भी है, ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव के अंदर हम बताएं तो रूरल एरियाज़ के अंदर क्या है कि ब्रेन गेन हुआ है, वापस ब्रेन गेन हुआ है। एट द सेम टाइम क्या है कि जो रूरल इंडियाज़ के जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते थे वो अर्बन एरिया के कल्चर को लेके आए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो जो थोड़े बहुत सोशल एविल्स हैं रूरल इंडिया के, उसको भी क्या है कम कर देंगे। अर्बन एरिया के अंदर पॉजिटिव क्या हुआ है कि अर्बन एरिया में क्या है, देयर इज़ नाउ द इकोनॉमी मूविंग मोर टूवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव नाउ कॉल्ड इज समथिंग कॉल्ड इज गिग इकोनॉमी, जिसका भी क्या है कि इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ गया है। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है, लेट सपोज मी आई एम टेकिंग क्लासेस इन 3-4 institutions. Somewhere I am taking classes offline, somewhere taking classes online, and this particular IS network platform I am taking classes online. So this is also gig economy, wherein your time and your contracts are not fixed, they can vary and you can work any time of the day, either remote or either in the offline mode. So this is the first thing on an impact on the working population. Now if we talk about women, अब women की जब बात करते हैं तो women के अंदर there is whole lot of thing. So women के अंदर we have seen that the instances of domestic violence has increased सब्सटेंशियली। आपको पता होगा जब लॉकडाउन लगा था तो मैनी पीपल एंड मैनी कपल एक्चुअली व्हाट दे फाइल्ड फॉर डिवोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वायलेंसेस। एट द सेम टाइम देर इज़ नाउ हायर ड्रॉप आउट रेट्स स्पेशली इन वुमेन्स, स्पेशली इन द सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर या सेकेंडरी एजुकेशन लेवल, ठीक है। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द लेसर teaching and education avenues left now, and also parents of these women are actually forcing them to get married because they are also free. At the same time, there are now less opportunities in employment for women post COVID scenario, and therefore there is increasing dropout rates in the secondary education. Also, the families are not having more economic opportunities and capacity to fund the education of the woman child who is actually get to marry in the later days of the life. This is the perception in the minds of various families in the country. Then हम बात करें इंक्रीज चाइल्ड मैरिजेस। तो चाइल्ड मैरिजेस की अगर बात करो तो सर्टेन इंक्रीज क्या है कि चाइल्ड मैरिजेस में देखा गया है। तो इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंसेट की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। लैंसेट की रिपोर्ट क्या कह रही थी, लैंसेट रिपोर्ट सेड और सजेस्टेड दैट 5 million additional girls will be married in next 5 years, ठीक है। 5 million additional girls will be married in next 5 years. So there is high chance of what, child marriage in women and girls, and as a result of which what is happening is they are actually trapped in the vicious circle of poverty. Vicious circle of poverty कैसे हो जाएगा ये, because we know
ठीक है, कि अ गर्ल चाइल्ड हु इज़ मैरिंग अर्ली देन ही विल बी हैविंग वॉट अर्ली प्रेगनेंसीज. Early pregnancies will lead to what? Early pregnancies will lead to unhealthy child and unhealthy mother. Unhealthy child and unhealthy mother will not be properly educated in the future because the woman is not empowered because she is married at an early age. She is not educated. She is illiterate, and therefore unhealthy child which is not properly educated with the unhealthy and uneducated woman will lead to what? Increased poverty. So that we know. तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर दे विल बी गोइंग. देन देयर इज डुअल वर्डन. डुअल वर्डन क्या क्या है? दैट स्पेशली फॉर वुमेन देयर इज वर्क फ्रॉम होम and work for home. ठीक है, so the woman is trapped in these two dual duties, that what work from home she is also doing and work for home she is also doing. Then reproductive health issues are also increasing because majorly other diseases like of related to cancer, gynecologist and other things and other facilities of health are being overpowered and overshadowed by the COVID pandemic and COVID ailments. As a result क्या है कि reproductive health जो है वो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है. At the same time there is issue of what is called as institutional deliveries. ठीक है, due to COVID the capacity of the hospital is actually diverted towards the COVID patients and therefore institutional delivery percentage is also come down, and as a result क्या है कि women is actually more prone towards unhealthy situations and circumstances. At the same time there is also poor access to sanitary napkins and हाइजीन. तो ये चीज़ हम बता सकते हैं. तो वुमेन का कंप्लीट हो गया. अब एल्डरली पॉपुलेशन पे आते हैं तो हमें पता है एल्डरली पॉपुलेशन में वी हैव सीन व्हाट इंक्रीज मॉर्टेलिटी रेट्स. इंक्रीजिंग मॉर्टेलिटी रेट्स क्यों इंक्रीज हुई है? बिकॉज दीज एल्डरली पॉपुलेशन हैव मोर व्हाट वी कॉल्ड एज कोमॉर्बिडिटीज़. कोमॉर्बिडिटीज़ भी क्या है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं. एज ए रिजल्ट क्या है? कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब क्या है कि कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया. ठीक है, देन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो गई, देन एस्थमेटिक वाली प्रॉब्लम हो गई, अदर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो गए. तो इसमें बहुत सारी इशूज़ हैं. दीज कोमॉर्बिडिटीज़ आर वेरी कॉमन इन द एल्डरली पॉपुलेशन एंड देयरफॉर व्हेन दे सकम टू COVID-19 इन्फेक्शन देन अलॉन्ग विद दीज कोमॉर्बिडिटीज़ दे आर मोर प्रोन टू डेथ. ये चीज़ हो गई क्लियर. एट द सेम टाइम दे आर नाउ फीलिंग आइसोलेशन. अब आइसोलेशन दो तरीके से हैं. एक तो क्या है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में लोग रहते हैं वो फैमिलीज़ क्या है कि यूजुअली अर्बन एरियाज़ में हैं, या फिर क्या है कि डुअल करियर फैमिलीज़ हैं जहाँ पर क्या है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर शिफ्ट हो गए थे लोग अपनी फैमिली को टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में छोड़ के. तो एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर क्या है, दीज एल्डरली पीपल आर एट आइसोलेशन. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मान लो क्या है कि घर में किसी को कोविड हो गया या इन्हीं को कोविड हो गया तो देयरफॉर दे आर ऑल्सो एट द सेम टाइम आर अंडर ह्यूज आइसोलेशन एंड आइसोलेशन इज एक्चुअली टेकिंग अ टोल ऑन देयर लाइफ बिकॉज आफ्टर ऑल इट ऑल दैट मैटर्स इज़ द ह्यूमन टच. ये चीज़ हो गई. बट इसका एक पॉजिटिव भी है कि क्या है कि क्योंकि देर इज़ रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़. As a result what is happening is there is now again re-emergence. Also both the working agents of the family are actually now working from home, so there is now a re-emergence of what we call as increasing joint family culture. But that is not uniform, that is only in some families. तो एक पॉजिटिव है कि क्योंकि क्या है कि now work from home is there, people who were there in the metropolitan cities have come back to their districts and town, therefore they are now spending more times with their parents and elderly population. So there is now a re-emergence of joint family culture and value system. अब आते हैं मार्जिनल सेक्शंस पे. तो मार्जिनल सेक्शंस में बहुत सारे आस्पेक्ट्स में बात कर सकते हैं. पहले हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं. ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो हम ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स देखा गया है कि मोर देन 40% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ वर्किंग एज अ माइग्रेंट लेबर. जो भी माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हमने देखा था इन द रिवर्स माइग्रेशन, तो उसके अंदर 40% कौन है? ट्राइबल पॉपुलेशन है. ठीक है, विच इज़ लीडिंग टू देयर लॉस ऑफ लाइवलीहुड. तो COVID-19 हैज़ लीडेड वॉट दे हैव इट लीडेड टू देयर लॉस ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है. देन डोमेस्टिक वर्कर्स, कॉजुअल लेबर्स. तो यहाँ पर क्या देखा गया है कि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली डिसरप्टेड द जनरेशंस ऑफ एफर्ट. ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि जो जनरेशंस ऑफ एफर्ट लगा के जनरेशंस ऑफ एफर्ट जो लगे थे, इसका मतलब क्या होता है? जनरेशंस ऑफ एफर्ट का मतलब जैसे अगर आप ये देखो तो ये इकोनॉमिक हिरार्की है. ठीक है, तो पहले जो लोग यहाँ पर थे, ठीक है, ऑफ दीज डोमेस्टिक वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स, वो यहाँ पर आने के ऊपर अपनी जनरेशंस ऑफ एफर्ट्स के बाद क्या है कि अपनी इकोनॉमिक हिरार्की को क्या है कि इम्प्रूव कर रहे थे. बट वॉट COVID-19 डिड वॉज इट एक्चुअली इम्पैक्टेड देयर वॉट इट डिसरप्टेड देयर जनरेशंस ऑफ एफर्ट पुट इन सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी. तो इनकी जो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी हो रही थी वो क्या हो गई है? हॉल्ट हो गई है, और वो क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है इन सम ग्रेव सिचुएशंस. तो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी क्या है? हैज़ बीन डिसरप्टेड इवन आफ्टर एफर्ट्स ऑफ जनरेशंस टुगेदर.
देन चिल्ड्रन पे आप बता सकते हो, चिल्ड्रन पे हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया था ऑन ई लर्निंग, ठीक है, जिसको ऑलरेडी 1000 लोगों ने देख रखा है। तो ई लर्निंग के अंदर जो भी इश्यूज़ थे, चाइल्ड लर्निंग के ऊपर किस तरीके से उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये तो क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इश्यूज़ थे। एट द सेम टाइम क्या है कि जो पुअर चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, पुअर चिल्ड्रंस हैं जिनको क्या है कि एजुकेशन क्या है गवर्नमेंट स्कूल से मिल रही थी, जहाँ पर प्रोविज़न है मिड डे मील स्कीम का, तो अब उनको क्या है कि मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या है कि मिड डे मील्स भी नहीं मिल रही हैं, देयरफॉर दे आर ऑल्सो बीन प्रोन टू व्हाट वी कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, स्पेसिफिकली मॉल न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि मॉल न्यूट्रिशन के अंदर दे आर मोर सकम, क्योंकि उनके पहले स्कूल जाते थे तो वहाँ पर मिड डे मील स्कीम के अंदर दे यूज टू गेट सर्टेन फूड आइटम्स इन देयर रिसेस टाइम, तो वहाँ पर इशू हो गया। प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं ई लर्निंग के अंदर, जो अपने घर के अंदर जिनको बहुत इशू हो रहा है फॉर बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मोर स्क्रीन टाइम, जो हमने ई लर्निंग वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था सारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड इन एजुकेशन। एट द सेम टाइम डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत सारा इशू है, बिकॉज नो वन इज़ एक्चुअली आस्किंग देम। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली इन हॉस्पिटल इज़ नॉट डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो उनको कोई इशू होता है तो दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू गो, ठीक है, नो वन इज़ एक्चुअली हेल्पिंग देम टू इवन गेट टेस्टेड फॉर वेदर दे आर पॉजिटिव फॉर कोविड और नॉट। तो ये सारे इशूज़ हैं। अब बिजनेस ग्रुप के ऊपर आते हैं। तो बिजनेस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस ग्रुप के अंदर क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, ठीक है, तो बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो बिजनेसेस हैव एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड, मैनी बिजनेसेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड टूवर्ड्स द डिजिटल एरा या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ठीक है, व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव डन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि उन्होंने कर लिया इंक्रीज, एंड देयरफॉर दे हैव नाउ इंक्रीज द इट हैज़ इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं बात करूँ तो पहले मीटिंग्स लेने के लिए लोग क्या फिजिकली मूव होते थे, दे यूज टू गो फिजिकली वाया फ्लाइट्स वाया कैब्स, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगते थे कंपनी को। बट नाउ द मीटिंग्स कैन बी डन ऑन जूम, गूगल मीट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, तो वहाँ पर क्या है कि हेल्प हो रही है किसको, बिजनेसेस को अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को करने में, और उनके सारे जो भी प्रोसीजर्स थे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। एट द सेम टाइम बहुत सारे नेगेटिव चीज़ भी हैं। नेगेटिव के अंदर क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसेस थे, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, टोटली डिस्टर्ब हो गए हैं, वो टोटली क्या है कि डिस्टर्ब हो गए हैं। अभी सिंपल सा इसका एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ पर एक यहाँ ओपन मार्केट के अंदर देयर वाज अ न्यू शॉप विच वाज बीन ओपन विच वाज गिविंग साउथ इंडियन डिशेस, ठीक है, उन्होंने अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ कोविड द इन्वेस्टमेंट विच दे डिड, ठीक है, जो उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट किया था दुकान खोलने में, एडवर्टीजमेंट करने के अंदर, वो सारा क्या हो गया, उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कुछ नहीं आया। कोविड आ गया, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, एंड नाउ दैट शॉप इज़ क्लोज फ्रॉम लास्ट 4-5 months एंड आई डोंट नो वाई इट इज़ क्लोज स्टिल। सो एक हम चीज़ बोल सकते हैं, तो स्मॉल बिजनेसेस स्टार्टअप्स आर द वंस हु आर मोर प्रोन टू दिस थिंग। और बिजनेस लॉबी के अंदर क्या है कि आपके साथ अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी भी बढ़ गई है इससे। इनइक्वालिटी किस तरीके से बढ़ गई है कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है एक, ऑक्सफैम की रिपोर्ट विच टॉक्स अबाउट वायरस एंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, विच वॉज रिलीज इन द रिसेंट पास्ट। वॉट इट सेड इज़ कि जो टॉप 1000 बिलियनियर्स हैं एंड मल्टी मिलियनियर्स हैं, ठीक है, दे विल टेक अराउंड 9 months टू रिटर्न बैक टू नॉर्मलसी, बट इट विल टेक अ डिकेड फॉर पुअर पीपल टू कम बैक टू नॉर्मलसी। तो बिजनेसेस को या जो बिलियनियर्स हैं उनको सिर्फ 9 महीने लगेंगे, दे कैन अगेन रिटेन देयर वेल्थ, बट वॉट एवर द डेवलपमेंट्स एंड प्रोग्रेस दीज पुअर पीपल मेड इन देयर लाइफ मे इट एंड सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी, उनको क्या है कि इट विल टेक अ डिकेड अगेन टू कम बैक टू नॉर्मलसी, और जो भी उन्होंने प्रोग्रेस अपनी लाइफ में अभी तक अचीव करी थी। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम कंक्लूजन की बात करें लास्ट में, तो हम कंक्लूजन में ये बता सकते हैं कि कोविड-19 हैज़ इमर्ज नॉट ओनली इज़ अ हेल्थ इमरजेंसी। तो कोविड-19 क्या है, कोविड-19 इज़ नॉट ओनली अ हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी तो है ही है, बट एट द सेम टाइम व्हाट इट इज़ ऑल्सो डूइंग इज इट इज़ ऑल्सो apart from health emergency, it is also a social phenomena because we have seen widespread socio-economic transitions. It is also a social phenomena, and government should respond through various relief packages, ठीक है, and should make resilient health and infrastructural outcomes या इम्प्रूवमेंट्स
ठीक है, so that the governance structures in such times of COVID-19 wherein poorer people and peoples who belong to the low economic group are not able to find the health education facilities should be benefited, so that not more inequality will be increased due to this COVID-19 pandemic, which is a health emergency and a social phenomenon, because it is actually targeting a diverse social group which is actually, or which can actually increase the inequality. So this was all regarding this particular discussion on COVID-19 and its impact on the different sections of Indian society. तो हम इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस लेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, हम देखेंगे किस तरीके से क्या है चेंजेस आ रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में सो इंडियन सोसाइटी में, और इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ हम ऐसे टॉपिक्स लेंगे विच आर फेवरेट फॉर द एग्जामिनर, लाइक वुमेन एक ऐसी थीम है जो हर बार क्या है कि कैसे ना कैसे फॉर्म में सोसाइटी क्वेश्चन में आती आती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी टेकिंग ऑन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जो इंडियन सोसाइटी के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर लेंगे, एंड यू शुड watch that video, try to write your answers, ठीक है, in whatever the way I am teaching you, and once you will be writing 150, 200, 250 answers, you will start getting more confidence. So don't just watch passively these videos, try to actively involve yourself. Just again revise that video, write an answer, and then you will be better able to appreciate that okay, my answer writing is improving. So this is all about this video. Thank you and have a nice day.